أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین، میرے راہ حق کے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ موضوع دراصل اسلام میں وراثت کا جو تصور ہے، اسلام میں وراثت کے کیا کچھ مسائل ہیں، کیا کچھ تصور ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے. اور اس موضوع کو میں نے 2 نشستوں تک میں نے محدود کیا ہے. انشاءاللہ آج کی یہ نشست انشاءاللہ ایک گھنٹے کی ہوگی. اب چونکہ ٹائم ابھی دیکھیے 9:50 ہوئے ہیں. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ 10:45 تک انشاءاللہ ختم کر دوں اس کو. اور دوسری جو نشست ہوگی انشاءاللہ کل جو اس کا تتمہ ہوگی. جہاں تک ہو سکے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قانون وراثت انتہائی پیچیدہ، انتہائی مشکل موضوع ہے. اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں. اور اس قانون کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ علم الفرائض کے نام سے ایک علم مدون بھی کیا گیا ہے. علم الفرائض جسے کہتے ہیں، علم المیراث کو. آج اس نشست میں انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ اس قانون کے جو کلیات ہیں، جو ضوابط ہیں، جو فارمولاز ہیں، جو قوانین ہیں، انشاءاللہ ان کلیات پر میں بحث کروں. اس طرح کے کیا ہے، ان کلیات سے جزئیات کا استخراج کیا جائے. جزئیات مطلب انہی کلیات کے ذریعے سے جو بھی مسائل ہوں گے وہ استنباط کریں گے اور استخراج کریں گے، جو کہ ہمارے لیے بڑی حد تک کیا ہے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میں نے آج جس سورہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. چونکہ دیکھیے بحث موضوع تو ہے ہمارا وہ آیت المیراث کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں، لیکن اگر میں اس کو سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 ہی پر اکتفا کروں تو کیا ہے کچھ مضامین چھوٹ جائیں گے. وراثت کی کیا اہمیت ہے اور اس کا اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کیا تصور ہے، اس کو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ربط بیان کیا ہے. سورہ نساء کے شروعات ہی سے کیا ہے اس کا ربط ہے. تو اسی لیے میں نے کیا ہے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت بیان کی ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے لے کر کیا ہے آیت نمبر 14 تک کی ہماری تفسیر ہوگی. اور جو کچھ بھی چیزیں بقیہ ہوں گی باقی بچ جائیں گی انشاءاللہ کل کے درس میں وہ ختم کی جائیں گی انشاءاللہ. بھائی میں نے جس تلاوت کی ہے، جو آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے. اور اگر ہم اس سورہ کو پڑھیں گے تو ایک عجیب بات ہمیں یہ لگتی ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ کیا ہے ہر آیت کا ایک دوسری آیت کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے. سورہ نساء کے شروع کے آیت سے لے کر آپ دیکھیے آیت المیراث کے اختتام تک، آیت نمبر 14 تک اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے ایک آیت میں دوسری آیت سے بہت ہی بڑا گہرا ربط ہے اس کا. سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ تخلیق کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں. یعنی تخلیق کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو کیا ہے جاندار کو بے جان سے پیدا کرنا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تو مٹی بے جان ہے. اسی بے جان چیز سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ تخلیق کی پہلی قسم ہے، بے جان سے جاندار کو پیدا کرنا. تخلیق کی دوسری قسم بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جاندار کو جاندار سے پیدا کرنا. یعنی مگر جاندار کو جاندار سے پیدا کرنا مگر توالد متعارف کے خلاف، یعنی نیچرل برتھ کے خلاف. جو نیچرل برتھ ہوتا ہے، جو نیچرل جو پیدا ہونے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے خلاف.
جاندار سے جاندار ہی کو پیدا کرنا، لیکن اس کے یعنی نیچرل برتھ کے خلاف، جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے کیا ہے پیدا کیا گیا، یا احادیث کے اندر جیسا آتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جاندار ہیں، جاندار سے جاندار کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، مگر پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے، جو متعارف طریقہ ہے جسے نارمل پیدا کرنا ہے، اس کے خلاف ہے۔ اب یہ تیسرا طریقہ جو معروف اور مشہور طریقہ ہے، جیسا کہ ہم نارملی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جاندار کو جاندار سے کیا ہے نطفے کی شکل میں پھر پیدا فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، نطفے کی شکل میں، پھر وہ نطفہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، کیا مضغہ بن کے علقہ بن کے اس طرح کیا ہے بچہ رحم مادر کے ذریعے سے کیا ہے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 تخلیقی جو مراحل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کی 3 قسمیں یہاں پر اجاگر بیان کی، اور پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جب رشتہ ازدواج میں جڑ جاتے ہیں تو خاندان وجود میں آتا ہے۔ جی، جب رشتہ ازدواج میں جڑ جاتے ہیں تو خاندان وجود میں آتا ہے۔ جب تک کسی لڑکے کی شادی نہ ہو تب تک کیا ہے وہ مختلف رشتوں سے منسلک نہیں رہتا، مطلب ایک ہی رشتے سے رہتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ لیکن شادی جیسے ہی ہو گئی، اب کسی کا شوہر ہو گیا، بچہ ہوا، باپ بن گیا، اور کسی کا چچا بنے گا، پھر اسی طرح سے کسی کا نانا بنے گا، کسی کا دادا بنے گا، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے عورت کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ جو ممکن ہوا ہے عورت کی وجہ سے، ورنہ مرد یہ تمام اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ گویا مرد اور عورت کا رشتہ ازدواج میں جڑ جانا یہ خاندان کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو فراہم کرنے میں بنیادی رول جس نے ادا کیا ہے وہ عورت ادا کرتی ہے۔ اس بنیادی رول عورت ہی ادا کرتی ہے۔ نقطہ سمجھنے میں آ گیا اب ہم کو کہ اب یہ ایک خاندان جو وجود میں آیا، وہ کسی خاندان وجود میں آیا، اسی طرح مختلف خاندانوں سے مل کر کیا ہے معاشرہ بھی بنتا ہے۔ ایک خاندان سے کیا ہے اس طرح مختلف خاندان آتے ہیں، اور اسی طرح مختلف خاندانوں سے مل کر کیا ہے معاشرہ یعنی سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اور سوسائٹی وجود میں آ گئی، پھر معاشرہ وجود میں آ گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایک نظام یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب قرآن حکیم یہ کہتا ہے جب معاشرہ سوسائٹی وجود میں آ گئی، اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے 2 ہیں۔ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کیا ہے؟ 2 ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یتیموں کا ہے، اور وہ بچہ جس کے سر سے کیا ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، یہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ مانا جاتا ہے۔ توجہ دلائی گئی مسلمانوں کو، معاشرے کے افراد کو توجہ دلائی گئی کہ اس یتیم بچے کی نگہداشت کی جائے، اس کی نگرانی کی جائے، ورنہ اگر یہ غلط راستے پر چل نکلا تو کیا ہے خود معاشرے کے لیے سخت مضر اور سخت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا ایک دینی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے کے افراد اس یتیم بچے کی پرورش کریں، کفالت کریں اور اس کی نگہداشت کریں۔ اسی وجہ سے کیا ہے معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد معاشرے کے جو 2 طبقے ہیں کمزور طبقے، یتیم اور عورت، اس میں سے سب سے پہلے یتیموں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ دیکھیے کیا ربط اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پہلے تخلیق کو بیان کیا، تخلیق کے بعد ایک خاندان کا کیسا وجود میں آتا ہے، پھر سوسائٹی کیسا وجود میں آتی ہے، سوسائٹی میں جو کمزور طبقے جو رہتے ہیں اس میں سے جو پہلا یتیموں کا ذکر کیا۔ اب دوسرا کمزور طبقہ وہ عورتوں کا طبقہ ہے۔ یہ فطری طور پر کمزور کیا ہے واقع ہوئی ہے عورتیں، اسی وجہ سے کیا ہے قرآن و سنت میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں کیا ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس سے اسلام سے پہلے اس کا کوئی حق نہیں تسلیم کیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ کیا ہے تسلیم کیا کریں، یہ حق کے لیے کیا روئیں، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ اذا الشمس کورت میں جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شناعت و قباحت کو کیا ہے واضح کرنے کے لیے باقاعدہ میدان محشر کو پیش کر کے کیا ہے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ بتایا ہے کہ اس زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔
تو کیا انداز ہے دیکھیے قرآن مجید کا جو کہنے کا گفتگو کا جو قرآن کے گفتگو کا انداز کا دیکھیے سبحان اللہ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے وہ خود بخود یہ بتاتی ہے کہ کیا ہے میں کسی انسان کا کلام نہیں ہوں. کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے الفاظ کو جو اس طرح سے ترکیب دی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. تو قرآن مجید یہ خود کیا ہے، اس کا معجزہ یہ ہے کہ وہ خود بتا دیتی ہے کہ میں کسی انسان کا کلام نہیں ہوں. اللہ اکبر. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیری خطا کیا تھی، کس خطے کی وجہ سے کیا ہے تجھے قتل کیا گیا، تو اس صنف کو کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس جو کمزور طبقے کی جو دوسرے عورتیں ہیں، یعنی اس صنف کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹی کی پیدائش معاشرے میں ننگ و عار کا باعث تھی اور توہین اور تذلیل کا باعث تھی، یعنی بڑی ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا. اگر کسی آدمی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، تمنا یہ کرتا تھا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں کیا ہے سما جاؤں، دھس جاؤں. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے سلسلے میں اس صورت کے اندر کیا کیا حقوق بیان کیے. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ جو کمزور طبقہ ہے اس کو اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں. سب سے پہلا حق جو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، کہ مہر کیا ہے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، مہر لوگ ادا نہیں کرتے، نہیں دیتے تھے. اور وراثت میں تو کیا ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، کچھ بھی تصور ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی حق ہی نہیں تسلیم کیا جاتا تھا عورت کا. اسلام نے آ کر کیا ہے عورت کو وہ مقام عطا کیا، وہ مقام کے کیا ہے کسی اور مذہب نے کیا ہے عورت کو نہیں دیا. ماں کی حیثیت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے سبحان اللہ. بیٹی کی حیثیت میں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک باعث دخول جنت ہے سبحان اللہ. اور اسی طرح سے بہن ہے تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک باعث دخول جنت ہے سبحان اللہ. اور بیوی ہے تو باعث تسکین دل اور باعث راحت ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بہترین مقام، کیا اونچا مقام عورتوں کو نوازا ہے. اور قرآن مجید باقاعدہ ایک ضابطہ بیان کر دیتا ہے. قرآن مجید نے ایک ضابطہ قرار دیا، ایک ضابطہ دیا ہے قرآن نے کہ باقاعدہ کیا ہے وہ ضابطہ، ایک اصول دیا کہ مہر کیا ہے بلا جھجک بلا پس و پیش عورت کو دے دیا جائے. یہ ضابطہ ہی اسلام نے کیا ہے ایک ضابطہ بنا دیا جو کہ عورت کے مقام کو اونچا اٹھا کر رکھ دیتا ہے. تو یہ کیا ہے ایک ضابطہ بن گیا کہ انسان کو چاہیے کہ مہر کیا ہے، مہر جو رقم جو ہے مہر وہ بلا جھجک بلا پس و پیش کیا ہے عورت کو دے دیا جائے، یہ اس کا حق ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ النساء میں اسی سورہ میں فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی عورتوں کو ان کا کیا ہے ان کا مہر دے دو. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا. اور اسی طرح سے مہر کے بارے میں تاکید آگے. اب مہر کے بارے میں تاکید کے بعد اب دیکھیے اب اس کے بعد وراثت میں باقاعدہ مستقل طور پر ان کے دو حصوں کی وضاحت کی گئی ہے سبحان اللہ. اب دیکھیے پہلے جو یعنی زمانے جاہلیت میں جس طرح عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بلکہ مال و دولت کا حصہ تو چھوڑیے، کچھ اسے ایک مخلوق کی طرح ہی نہیں دیکھا جاتا تھا. یعنی وراثت کے مال میں تو دور کی بات ہے، تصور ہی نہیں تھا. لیکن اسلام نے ان کے کیا وراثت میں باقاعدہ مستقل طور پر ان کے حصوں کی وضاحت کی گئی ہے. یہاں پر اسلام نے فرمایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم دیکھیے آپ غور کریں گے قرآن کریم کہاں جلدی کیا ہے جملہ ریپیٹ نہیں کرتا، کہیں پر بھی جلدی میں کیا ہے جملہ ریپیٹ نہیں کرتا. لیکن یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا تھا اس آیت کو کہ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے. لیکن ایسا نہیں کہا گیا، ایسا کہا جا سکتا تھا لیکن وہی جملہ جو مرد کے لیے استعمال ہوا ہے وہی جملہ کیا ہے عورت کے لیے بھی استعمال کر کے یہ بتانا چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح ترکہ مستقل حق ہے مرد کا، عورت بھی ترکے میں کیا ہے مستقل ترکے میں حق رکھتی ہے سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بیان کرنے کا مقصد ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور ان کے اقرب لوگ کیا ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی وہ حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور ان کے والدین اور ان کے کیا اقربی کیا ہے چھوڑ کر چلے جاتے. تو بیان کرنے کا مقصد جس طرح عورت مرد کو کیا ہے مستقل طور پر ایک طریقے میں حقدار سمجھا جاتا،
उसी तरह का हक़ क्या है अल्लाह ताला ने यहाँ पर औरत को बनाया। और यहाँ पर लफ्ज़ नसीब लाया गया है, ज़रा गौर करने की बात है, यानी लिर्रिजाली नसीबुन, हिस्से के लिए लफ्ज़ नसीब का इस्तेमाल किया गया है। यानी हिस्से के लिए जो अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ है वो हिस्सा है, हिस्सतुन, और इसकी जमा है हिस्सुन। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता था कि लिर्रिजाली हिस्सतुन, लिर्रिजाली हिस्सतुन, और मर्दों के लिए एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ नसीब लाया गया, जबकि अरबी ज़बान में खुद क्या हिस्से को हिस्सतुन कहा जाए, लेकिन यहाँ हिस्से की जमा हिस्स नहीं आए, बल्कि क्या है लफ्ज़ नसीब लाया गया है। यानी नसीब किसे कहते हैं अरबी ज़बान में? नसीब लफ्ज़ नसब से बना है, यानी नसब यंसुब का मतलब गढ़ जाना, गढ़ जाना, हल्ला नहीं। कोई भी चीज़ क्या है रसूख कर, किसी भी चीज़ को ज़मीन में गाड़ देने को क्या है नसब कहा जाता है। इस तरह से नसब को नसब बनाया मुतय्यन है, यानी जैसे किसी चीज़ को नसब कर दिया जाए, क्या उसे क्या है उसे क्या उसी की तरह क्या है इसको नसब के तौर पर क्या है इस्तेमाल किया गया। तो ये कहने का मकसद है क्या उसी से निकला है ये नसब, यानी नसीब के ज़रिए, नसब ही के ज़रिए से क्या लफ्ज़ नसीब आया है। ऐसे ही ये हिस्सा क्या है मुतय्यन है। जिस तरह से क्या है पहाड़ क्या है ये ज़मीन में पैवस्त हैं, यानी गड़ गए हैं, उसी तरह से मर्दों का और औरतों का हिस्सा भी क्या है मुतय्यन शुदा है, मुतय्यन है, अल्लाह ताला ने तय करके फ़ैसला करके रख दिया है। तो ये बताना यहाँ पर मकसूद है। यानी जी, तो उसके बाद देखिए अल्लाह तबारक तआला ने जो बयान किया लिर्रिजाली नसीबुन, यानी ये मुतय्यन हिस्सा है, नसीब है। कानून विरासत की तकसीम की बुनियाद क्या है? अब ज़रा दूसरी बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। कानून विरासत की तकसीम की बुनियाद क्या है? यहाँ पर इस आयत में बुनियाद को बताया कि विरासत किस बुनियाद पर तकसीम की जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया लिर्रिजाली नसीबुन, तो नसीब की तशरीह हमारे सामने आ गई है, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कानून विरासत की जो तकसीम है बुनियाद है, किस रिश्ते से लोग क्या है तरके के हकदार बनेंगे? सिर्फ दो रिश्ते हैं, सिर्फ दो रिश्ते हैं जिससे क्या है लोग क्या है तरके के हकदार बनेंगे, विरासत के हकदार बनेंगे। वो है विलादत का रिश्ता और दूसरा है अक़रबियत का रिश्ता। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जो कुछ तुम्हारे वालिदैन ने छोड़कर गया, यानी खूनी रिश्ता एक है। अलवालिदानी वल अक़रबून, वालिदान से बताया गया है कि तरके में हिस्सेदार बनने के लिए रिश्ते विलादत ज़रूरी है, रिश्ते विलादत। मिम्मा तरकल वालिदानी का मतलब क्या है? रिश्ते विलादत एक होना ज़रूरी है, और जो ज़रूरी, और दूसरा जो रिश्ता है तरके में हिस्सेदार बनने के लिए वो है अल अक़रबून, यानी अक़रबियत का रिश्ता। अक़रबियत का रिश्ता यानी अगर रिश्तेदार करीब मौजूद हों, रिश्तेदार करीब मौजूद है, तो करीब रिश्तेदार की मौजूदगी में बईद जो रिश्तेदार है उसे क्या है तरका वो महरूम हो जाता है, उसे तरका नहीं दिया जाता। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी एक मैयत है, बाप मर गया है, बाप मरा है, तो क्या है उसका जो करीबी जो रिश्ता है कौन होता है? बेटा सबसे करीब होता है। तो बेटे की मौजूदगी में उसके जो दूर के रिश्तेदार होंगे, यानी बाप के भाई वगैरह, ये जो सब हैं, भाई और चचा, यानी बाप के भाई हो या चचा भाई के बेटे हों, या ये सारे लोग क्या है हज़फ हो जाएंगे, यानी सारे लोग क्या है ब्लॉक हो जाएंगे, इनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि करीब वाले आदमी को क्या है दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर अक़रबियत का एक रिश्ता और क्या है रिश्ते विलादत और रिश्ते अक़रबियत, इसी बात को यहाँ पर क्या है अल्लाह तबारक तआला ने बयान किया है कि करीब रिश्तेदार की मौजूदगी में बईद जो दूर का रिश्तेदार है वो क्या है तरके से महरूम हो जाएगा। मैयत का जो सबसे करीबी है वो तरके का हिस्सेदार होगा। करीब के मौजूद होते हुए क्या है बईद रिश्तेदार को तरके से हक नहीं दिया जाएगा। तो क्या है यहाँ पर मालूम हो गया हमको लिर्रिजाल की शरह भी आगे कि मर्दों के लिए क्या हिस्सा है, और नसीबुन की शरह भी तशरीह भी आ गई। और इसी तरह से मिम्मा तरकल वालिदानु वल अक़रबून लाने की वजह भी क्या है मैंने आप हज़रात के सामने अभी तफसीली तौर पर बताई है कि इन दो रिश्तों से क्या है आदमी विरासत का हकदार ठहरता है। जी हाँ, अब तरका लफ्ज़ देखिए, लफ्ज़ तरका पर ज़रा गौर कीजिए। यहाँ पर मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह ताला ने तरका कहा। अरबी ज़बान में किसे कहते हैं तरका यत्रुकु? तरका यत्रुकु कहते हैं छोड़ना, तरका छोड़ना, जो तारिक छोड़ देने वाला। हाँ जी, वो इसी में क्या है वो हदीस आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि बैनल इस्लामी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात, यानी इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में सिर्फ इतनी ही चीज़ है कि आदमी क्या है नमाज को छोड़ दे। तो तरका जो है लफ्ज़ तरका वो छोड़ने को कहते हैं। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ तरका से भी एक नुक्ता यहाँ पर यह निकलता है कि मीरास की जो तकसीम है, मीरास की तकसीम आदमी के मरने के बाद ही होगी।
یہ ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے، میراث کی جو تقسیم ہوگی وہ آدمی کے مرنے کے بعد ہوگی، زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ بات یہاں پر لفظ ترکہ سے کیا ہے ابھر کر آتی ہے، یہ نقطہ کیا ہے ذہن نشین کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جو حدیث صحیح حدیث ہے بخاری کی، کتاب الفرائض میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم۔ یہاں پر ایک دوسرا قاعدہ کے طور پر کیا ہے، ایک نقطہ یہ بھی ایک دوسرا قاعدہ، پہلا نقطہ کا تھا کہ پہلا نقطہ کیا ترکہ کے ذریعے سے کیا بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ آدمی کی زندگی میں میراث کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ انتقال کرنے کے بعد ہی کیا ہے میراث کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور جو دوسرا جو نقطہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ کہ بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، اور نہ ہی کیا ہے کوئی کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ دیکھیے وہ مسلمان ہے، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے والدین اور جو سب لوگ ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو ان کا جو طریقہ ہے اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، اور اسی طرح سے اس کا جو طریقے میں کیا ہے ان کو کیا ہے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کہ کفر اور اسلام ندی کے کیا ہے دو کنارے ہوتے ہیں، کفر اور اسلام ندی کے دو کنارے ہیں، دونوں آپس میں نہیں ملتے ہیں۔ باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں کوئی ایک مسلمان اور کافر ہے تو ایک دوسرے کے طریقے میں کیا ہے حصہ دار نہیں بن سکتے۔ یہ اصول کیا ہے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ دوسرا اصول جو ہے میں آپ حضرت کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عامر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لقاتل شیء فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَيَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلَ شَيْئًا۔ بيهقي کی حدیث ہے، اور امام بيهقي نے اس کو کیا ہے کتاب الفرائض میں ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرا نقطہ ہے، ایک دوسرا اصول ہے۔ پہلا اصول یہ ہوا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ قاتل مقتول کے طریقے سے حصہ نہیں پائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو جو مقتول ہے اس کے طریقے میں قاتل کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو کیا ہے مقتول کے طریقے میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ قتل کی دو قسمیں آتی ہیں قرآن مجید میں، قتل کی کیا ہے دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک قتل خطا ایک ہے، غلطی سے قتل کر دینا ایک ہے، اور قتل عمد ایک ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا ایک ہے۔ قتل خطا جو ہے غلطی سے جو قتل کر دینا اس کا بھی ذکر سورہ نساء ہی میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کو مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو کیا ہے قتل کرے اگر کوئی مومن کسی کو کیا ہے غلطی سے قتل کر دیا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطأً، اور کسی نے کیا ہے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو کیا ہے اس کا کفارہ جو بیان کیا گیا ہے، ایک مؤمنہ لونڈی کو کیا ہے ایک مومن غلام کو کیا ہے آزاد کرنا ہے، وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور جو بھی اس کے اہل و اس کے خاندان والے مقتولین کے خاندان والے ہیں تو ان کو دیت بھی کیا ہے ادا کرنی ہے۔ تو یہ سورہ نساء میں بیان کیا، یعنی غلطی سے قتل کرنے کے بارے میں بیان کیا، اور ایک سورہ نساء ہی میں کیا ہے جان بوجھ کر قتل کرنے کے بارے میں بھی بیان کیا، وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔ تو قرآن نے خود تقسیم کر دی کہ قتل کی دو قسمیں کیا ہے، بھول کر قتل کرنا اور ایک جان بوجھ کر قتل کرنا۔ تو کیا ہے قتل متعمد قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیا ہے قتل ہو گیا، یعنی بھول کر قتل کرنے کا مطلب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیا ہے قتل ہو گیا۔ اسی سے محدثین اور کیا ہے فقہاء لیتے ہیں کہ اگر کیا ہے غلطی سے وہ گاڑی میں بھی کیا ہے گاڑی میں کہیں جاتے رہو کچھ ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہو تب بھی کیا ہے حالانکہ وہ غلطی سی ہے تب بھی کیا ہے وہ اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مال وراثت کے غرض سے کیا ہے اس نے کیا ہے وہ ایسا کام کیا ہے تو اسلام اس کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو محدث حالانکہ اس میں اختلاف ہے لیکن کیا ہے میں نے وہ بات میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھ دی۔ تو معلوم ہوا کہ جو قتل غلطی سے قتل ہو گیا ہے وہ ایک ہے، اور دونوں مقتولین جو دونوں بھی جو مقتول ہیں یعنی قاتل ہیں، جو غلطی سے قتل کرنا ہو یا جان بوجھ کر قتل کرنا ہو، یہ دونوں بھی کیا ہیں مقتول کے طریقے میں سے حصہ نہیں پائیں گے، کچھ بھی حصہ نہیں پائیں گے، چاہے وہ غلطی سے قتل ہو یا چاہے جان بوجھ کر قتل۔ تو یہ دو بنیادی باتیں کیا ہے میں نے اصول کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ تو بالجملتاً دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو کیا ہے میت کے مرنے کے بعد ہی کیا ہے طریقے کی تقسیم کی جائے گی ہوگی۔ زندگی میں اگر باپ کوئی چیز کیا ہے مطلب میت کے انتقال کے بعد ہی یعنی آدمی کے مرنے کے بعد ہی کیا ہے اس کی وراثت تقسیم ہوگی، یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ اگر
वलो बिलफर्स, अगर ज़िंदगी में अगर क्या है बाप कोई चीज़ दे रहा है तो ये क्या है, ये हदिया है, अतिया है, ये क्या है तरका नहीं शुमार किया जाएगा, ये हदिया शुमार किया जाएगा, गिफ्ट शुमार किया जाएगा, और क्या है हिबा शुमार किया जाएगा। बेटी को मिसाल के तौर पर क्या है, बेटी को किसी बाप ने 50 तोले सोना दे दिया है, अब बेटी क्या है उसकी मालिक बन गई है, बेटी उसकी मालिक बन गई, ये हिबा है बेटे को ज़िंदगी में। और इसी तरह से अगर बेटे को कुछ दे दिया है बाप ने, बेटे को कुछ बाप ने दे दिया है तो ये भी क्या है, हदिया है, गिफ्ट है। और एक बात याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, एक बात बारीकी सी बात यह है, याद रखें कि विरासत की तकसीम आदमी की ज़िंदगी में क्यों नहीं होती, आदमी के जिंदा रहते हुए क्यों नहीं होती। एक तो क्या है, तरका का लफ्ज़ आया है, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, आदमी छोड़कर जाने के बाद ही क्या है इसकी विरासत की तकसीम की जाएगी। और एक दूसरी जो अहम जो चीज़ है, जो इसका रीज़न जो कॉज जो दिखता है नज़र आता है वो एक है कि विरासत की तकसीम आदमी की ज़िंदगी में इस वजह से नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तकसीम मीरास का कानून ये बताया है कि लड़की को एक हिस्सा दिया जाए। तकसीम विरासत का कानून क्या बताया, लड़के और लड़की के दरमियान में लड़की को एक हिस्सा दिया जाए और लड़के को 2 हिस्से दिए जाएं, ये विरासत की तकसीम है। तो जाहिर है कि तकसीम मीरास क्या है, विरासत की तकसीम के इस कानून के मुताबिक होगी कि लड़की का एक हिस्सा, लड़के के 2 हिस्से। लेकिन अगर आदमी जिंदा है, अभी मरा नहीं है, जितना लड़के को दे रहा है उतना ही वो लड़की को देगा। इसमें इंसाफ होनी चाहिए, जिंदगी में इंसाफ होनी चाहिए। जिंदा जब रहता है आदमी तब क्या है वो अपने लड़कों में और लड़कियों में क्या है इंसाफ से काम ले, और क्या है इंसाफ से, जब लड़के और लड़की के दरमियान आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, या कोई फ़र्क नहीं होगा। ये फ़र्क कब होगा, फ़र्क मरने के बाद होगा। अल्लाह ताला के ज़रिए से जो अहकाम हैं वो उसको नाफिज करने के बाद क्या है ये फ़र्क आयद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपनी ज़िंदगी में मीरास की तकसीम नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं, लिर्रिजाली नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, एक एक लफ्ज़ की शरह क्या है मैंने आप हज़रात के सामने इसकी कर दी है। उसके बाद जो एक टुकड़ा आता है, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, जो कुछ भी कम हो या जो कुछ भी ज्यादा हो, मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर। आमतौर पर यहाँ पर एक बात बयान करना मुनासिब समझता हूँ। आमतौर पर क्या है, ज़माने जाहिलियत का ये दस्तूर था कि अगर घर में कोई शमशीर जन मर्द है, मतलब जंगजू आदमी है, जंगों में लड़ने वाला आदमी है, और क्या है लड़ाइयों में हिस्सा लेने वाला आदमी होता था, तो वो कहता कि क्या भाई हमारे वालिद के मेरे बाप के तरके में से क्या है ये ढाल है, ये ढाल मुझे दे दो, ये मेरे बाप के तरके में से है शमशीर है, ये शमशीर मुझे दे दो। औरत क्या करेगी इस शमशीर का, और मेरे बाप के तरके में से क्या है ये ढाल है, ये ढाल मुझे दे दो, मुझे जंग के मैदान में इस्तेमाल का काम आएगा। औरत क्या करेगी इस चीज़ का, तो ये तरका तलवार है। इसी तरह से तलवार क्या है, ये मेरे बाप के तरके में से है, ये मुझे दे दो। औरत क्या करेगी, तो ये लाओ मुझे दे दो, लाओ, मतलब इस तरह से लोग जो होते थे, जंगजू जो मर्द होते थे, जो जंगों में शरीक होने वाले जो लोग होते थे, वो क्या है अपने बाप के तरके में से खुद ब खुद ले लेते थे, चूंकि वो औरत की काम की चीज़ नहीं होती थी। लेकिन कुरान कहता है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। विरासत की जो तकसीम अल्लाह ताला ने करार दी है, कुरान कहता है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। चाहे 10 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, उस 10 रुपये भी क्या है तकसीम किया जाएगा। 10 रुपये भी क्या है अल्लाह तबारक तआला वारिसीन में तकसीम करने का हुक्म देता है। इसीलिए कहा अल्लाह ताला ने मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, चाहे माल विरासत कम हो या ज़्यादा हो, मैयत ने जितना कुछ छोड़ा है एक एक पैसा क्या है ज़वील फ़ुरूज़ को दिया जाएगा। ज़वील फ़ुरूज़ इंशाल्लाह अगली बहस में आपके सामने मैं बयान करूंगा। ज़वील फ़ुरूज़ मोटे तौर पर क्या है, ये बात जहन में रख लें, ज़वील फ़ुरूज़ कहते हैं जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं कुरान के अंदर, उन्हें ज़वील फ़ुरूज़ कहा जाता है, उन्हें ज़वील फ़ुरूज़ कहा जाता है। जिनके हिस्सों को अल्लाह ताला ने क्या है कुरान और सुन्नत में जिनके हिस्से क्या है फिक्स हो गए हैं, तो उन सब के ऊपर तकसीम किया जाएगा। चाहे माल विरासत, चाहे तरके में थोड़ा ही पैसा क्यों ना छोड़ कर गया हो। तो मैंने आप हजरत के सामने मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर की भी शरह क्या है बयान कर दी। उसके बाद देखिए अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन बात नसीबन मफरूज़ा कहता है। नसीबन मफरूज़ा, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है अल्लाह तबारक तआला ने जो बयान किया है नसीबन मफरूज़ा, ये जो हिस्सा, जो तरके के जो हिस्से हैं ये मफरूज़ है, कहा अल्लाह ताला ने।
हिस्से क्या है, मफरूज है। मफरूज ला कर के अल्लाह तबारक तआला ये बताना चाहा अल्लाह ताला ने, सुबहान अल्लाह। क्या अल्लाह तबारक तआला के कुरान करीम में भी देखिए, अल्लाह एक एक लफ्ज़ ऐसा है कुरान करीम में कि क्या है, अंगूठी में जिस तरह नगीना होता है क्या है, उसी तरह के अल्फाज होते हैं कुरान करीम में। जिस तरह क्या है अल्लाह तबारक तआला मोतियों को पिरोता है, उसी तरह मतलब जिस तरह मोतियों में हार में मोतियों को पिरोया जाता है, उस तरह अल्लाह तबारक तआला अल्फाज की जो इंतखाब है, अल्लाह तबारक तआला कुरान का एजाज इससे छलकता है। अल्लाह तबारक तआला क्या है कुरान मजीद में क्या अगर उस लफ्ज़ को हटा दिया जाए, यानी मफरूज़ा के लफ्ज़ को हटा दिया जाए और कोई दूसरा लफ्ज़ लाया जाए, तो माने ही क्या है, बिगड़ जाएगा, उसका माने ही बदल जाएगा, यानी कानून ही बिगड़ जाएगा, कानून ही बदल जाएगा। नसीबन मफरूज़ा, ये हिस्सा मफरूज़ है, फ़र्ज़ किया हुआ हिस्सा है, ये तय कर दिया गया है, इसमें कौन सा भी ज़र्रा बराबर भी ऊंच नीच नहीं करनी है, इससे एक कानून निकला है। इसी से क्या है, नसीबन मफरूज़ा से एक कानून निकल कर आता है। विरासत के कवानीन में से एक कानून ये निकल कर आता है कि कानून ये है कि इंतकाल विरासत, यानी इंतकाल विरासत का मुंतकिल होना, विरासत का मुंतकिल होना, यानी मैयत ने जो माल छोड़ा है, मैयत ने जो माल छोड़कर चला, जो इंतकाल कर गया है, एक शख्स इंतकाल कर गया, माल छोड़ा है, उसका इंतकाल क्या है, इंतकाल मिल्कियत जबरी है। ये मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा से पेचीदा ज़रूर है, लेकिन इसको मैं अपने आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। इंतकाल मिल्कियत जबरी है, यानी मिसाल के तौर पर आदमी मर गया, आदमी मरते ही क्या है, सारे भाई जो रहते हैं, मैयत के जो भाई हैं, भाइयों ने पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। भाई आ गए, पूरे भाई क्या है, मैयत के जो भाई हैं वो सारे लोग क्या है, प्रॉपर्टी पर आकर कब्जा कर लिया। और बहन भी थी, बहन भी उनके पास है, लेकिन बहन को कुछ नहीं दिया। तो बहन बोलती है कि क्या है, अगर मैं इसरार करूंगी, अगर मैं ज़िद करूंगी, तो हो सकता है क्या मेरे भाई मुझे क्या है कभी घर के अंदर आने ना देंगे, मेरे भाई मुझे घर में दाखिल ना होने देंगे, तो नाचाकियाँ पैदा हो जाएंगी और क्या है दुश्मनियाँ पैदा हो जाएंगी। तो क्या है, चलिए छोड़ दे बेचारी। ये दिल में महसूस करके बोलती है कि क्या भाईजान चलिए छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब आप ही रख लीजिए। तो बहन क्या बोलती है, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलिए मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये सब क्या है आप ही लोग रख लीजिए, पूरी प्रॉपर्टी आप ही रख दीजिए। इतना कह देने से भी इस्लाम कहता है कि इतना कह देने से भी ये हक माफ नहीं होगा। इंतकाल मिल्कियत जबरी, बज़बरदस्ती उसको वो माल दिया जाएगा, जबरी है। ये कह देने से भी वो औरत का, उस बहन का हक अभी भी वो हकदार रहती है, अभी भी उस माल के माल विरासत में वो मुस्तहिक रहती है। ये अल्लाह ताला ने औरतों को ये हक अता किया है। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर एक औरत को क्या मुकाम अता करता है। तो ये जो अब भी क्या है, वो लड़की उस तरके में हिस्सेदार है। सिर्फ ये कह देने से क्या है मुझे नहीं चाहिए, वो क्या है उससे बरी नहीं होती, बल्कि उसमें क्या है अभी भी हकदार होती है। और इसी से क्या है, नसीबन मफरूज़ा यानी इंतकाल मिल्कियत जबरी है, उसे देना ही होगा, फर्ज है, देना ही होगा, चाहे वो जबान से कहे या ना कहे, कुछ भी हो, उसे देना ही है आपको। एक नुक्ता यहाँ पर क्या है, एक नुक्ता ये भी है, और भी बताता चलूँ मैं आपके सामने, वो ये कि देखिए एक इंतकाल मिल्कियत जो विरासत में है, यानी माल क्या है मुंतकिल होता है मैयत से क्या है दूसरे की तरफ। अब ज़कात में भी क्या है मिल्कियत का इंतकाल होता है। ज़कात में मिल्कियत का इंतकाल किस तरह से होता है कि क्या है 100 रुपये में से 2.5 रुपये निकालते हैं। और कहाँ से कहाँ मिल्कियत का इंतकाल होता है, एक मालदार से गरीब की तरफ इंतकाल होता है, मालदार से फ़कीर की तरफ इंतकाल होता है। तो ये भी क्या है मिल्कियत का इंतकाल हुआ। और यहाँ भी मैयत के पास क्या है, मैयत क्या यहाँ पर भी क्या है, इस दुनिया से चले जाने के बाद मिल्कियत का इंतकाल हो रहा है। लेकिन इन दोनों इंतकाल मिल्कियत में, ज़कात में और मैयत के माल के इंतकाल मिल्कियत में क्या फ़र्क है, फ़र्क क्या है। यहाँ पर ज़कात जो निकाले जाते हैं वो क्या है, मिल्कियत जो इंसान के ज़कात 100 रुपये में से 2.5 रुपये निकाल कर गरीबों में तकसीम किया जाता है, फ़कीरों में जो 8 मुदूद बयान किए अल्लाह ताला ने उसमें तकसीम किया जाता है। और इसी तरह से ज़कात में भी मिल्कियत होती है, मुंतकिल होती है, और विरासत में भी क्या है मिल्कियत मुंतकिल होती है। दोनों मिल्कियतों के इंतकाल में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि विरासत में जो इंतकाल मिल्कियत का कामिल दस्तूर है, विरासत के अंदर इंतकाल मिल्कियत जो मिल्कियत जो होती है, जो प्रॉपर्टी जो इंतकाल यानी दूसरे बेटों की तरफ जो मुंतकिल होती है, उसका कामिल दस्तूर है, कंप्लीट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो SOP है, कुरान में पूरी तरह से बयान कर दिया गया, अहादीस में पूरी तरह से बयान कर दिया गया। और ज़कात में जो इंतकाल मिल्कियत है उसका जुज़वी पहलू है, बस सिर्फ उसका जुज़वी पहलू है। अगर
विरासत में जो इंतकाली मिल्कियत का जो कामिल दस्तूर अगर माना जाए तो जो ज़कात का जो इंतकाली मिल्कियत है वो सिर्फ जुज़ई पहलू माना जाता है। देखिए सुबहान अल्लाह, तो ये फ़र्क है दोनों में जी। अगर इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, विरासत में वारिसिन को हिस्सा देना ज़का, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ज़कात और जब विरासत की मिल्कियत के इंतकाल होने को जब कंपेयर किया गया, मुकारना किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि विरासत में वारिसिन को हिस्सा देना ज़कात देने से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। सुबहान अल्लाह, ज़रा गौर करने की बात है मेरे अजीज़ भाइयों। ज़कात देने से भी ज़्यादा अहमियत ये बात रखती है कि वारिसिन को उसके हक़ पहुँचाएँ, वारिसिन के उसके हुकूक़ अदा करें। तो ये सबसे बुनियादी बात इसके अंदर है। तो ये है नसीबन मफरूज़ा, एक ऐसा हिस्सा मफरूज़ है। कानून ये निकला कि इस लफ्ज़ से कि क्या है, इंतकाल मिल्कियत विरासत के अंदर जबरी है, ज़बरदस्ती दिया जाएगा, किसी के कहने से कि मुझे नहीं चाहिए, ये क्या है, वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो फिर भी क्या है, वो हकदार बनेगी। तो इसको क्या है, मैंने आपके सामने मिसाल के ज़रिए से मैंने आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, जैसा कि मिसाल के आदमी मर गया है, आदमी इंतकाल कर गया है, अब मिल्कियत तकसीम हो रही है, मिल्कियत तकसीम हो रही है, प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है। तो कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनके हुकूक अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किए हैं। मिसाल के तौर पर आदमी मर गया है तो उसकी प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है, और ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनके हुकूक अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किए, मतलब वो ज़विल फुरूज़ में से नहीं है। ज़विल फुरूज़ किसे कहते हैं, जिनके हुकूक को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और सुन्नत हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए। तो वो लोग क्या है, ज़विल फुरूज़ में से नहीं है, वो लोग भी आ गए हैं। तो एक जज्बात, अब क्या है, यहाँ पर एक जज्बाती बात कही जा रही है, जज्बे को अपील किया जा रहा है, इमोशन को उभारा जा रहा है। अल्लाह ताला कहता है सूरह निसा आयत नंबर 8 में, वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। यानी ऐसे लोग जिनका हिस्सा अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया है, मिसाल के ऊपर प्रॉपर्टी के तकसीम के वक्त वो हाजिर हो गए, वो भी रिश्तेदार ही हैं, लेकिन क्या है, उनका हक मुतय्यन नहीं है, लेकिन वो भी रिश्तेदार हैं जिनका तो क्या करा, बेचारे वो भी रिश्तेदार हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनको भी क्या है, कुछ दे दिया करो, उनको भी कुछ दे दो। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा फ़र्ज़ुक़ूहुम, उनको भी कुछ दे दो, यानी नफलन सदक़तन, नफलन कुछ दे दो। हालांकि वो ज़विल फुरूज़ में से नहीं है, लेकिन आपके अखलाक इतने अच्छे होने चाहिए कि क्या है, उसको कुछ का हिस्सा उसको भी दे दो। लेकिन अगर माल बहुत कम है, देने के काबिल ही नहीं है, माल बहुत कम है, नहीं दिया जा सकता है, तो उनसे क्या है, कोई भली बात कह दो। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, यानी ये कह दें कि भाई हमें ही कुछ नहीं मिला, हम लोग क्या है बहुत कम पाए हैं, हम लोगों को क्या है बहुत कम मिला है, तो हमारे पास ही क्या है कुछ नहीं है ज़्यादा देने के लिए, तो अच्छी बातों से कहकर क्या है उन्हें भेज दिया जा सकता है, ये कहा। तो वक़ूलू, इसी को कहा अल्लाह ताला ने, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। अगर माल विरासत ज़्यादा है तो उनको भी क्या है कुछ दे देना बेहतर है, इसलिए कि ये जो कुछ भी तुम्हारे पास मिला है, माले विरासत हमें ज़्यादा मिला है, समझिए हमें ज़्यादा मिला है, तो दूसरे रिश्तेदार भी आए हैं जो ज़विल फुरूज़ में से नहीं है, तो अखलाक़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि अगर वो आए हैं तो उनको भी कुछ दे दें, क्योंकि ये जो कुछ माल हमें मिला है फ्री में मिला है, हमें क्या है फ्री में मिला है, बगैर मेहनत के मिला है। लिहाजा इसमें से तुम क्या है तुम उसमें से इसमें से क्या है तुम उन्हें कुछ दे देना, ये बेहतर होगा। और और क्या है, माले विरासत अगर कम है तो क्या है, भली बात कहकर उन्हें वापस कर दे। तो उसके बाद अभी एक ताकीद की जा रही है भाइयों को, वारिसीन को। देखिए यहाँ पर एक ताकीद के तौर पर अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 9 में फरमाते हैं, वलियख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा। गौर कीजिए, गौर करो भाई लोग, गौर करो, मतलब अल्लाह तबारक तआला उन भाइयों से कह रहा है, गौर करो भाई लोग, कि अगर हक मार लेते हैं भाई लोग अगर क्या है हक मार लेते हैं, किसी बहन का हक मार लेते हैं, बहन का किसी हक मारते हैं, तो बहन तो क्या है यतीम है, क्योंकि बाप मरा है, बाप मरने के बाद उनके क्या है उनका विरासत तकसीम हो रही है, बाप मर गया है, अब चूंकि बहन क्या है यतीम हो गई है, किसी से भी क्या है नहीं कह सकती वो चीज़, और भाई आकर क्या है प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिए हैं, यानी हक मार लेते हैं, बहन का भी हक मार लेते, तो बहन जो यतीम शुमार की जा रही है उस वक्त, वहाँ पर जो यतीम है, तो यतीम है
तो बहन तो यतीम है, ज़रा वो भी सोचें, ज़रा वो भाई लोग भी क्या है अपने को, अपने आप को उस बहन की जगह पर रख कर सोचें कि अगर वो मर जाएंगे और उनके छोटे छोटे बच्चे और कमज़ोर बच्चे, ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न कहा, कमज़ोर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और कमज़ोर बच्चे, तो उन्हें उन पर कैसा उन पर अंदेशा नहीं होगा कि ये ज़ाये ना हो जाएं। तो तो यहाँ पर क्या है कहा जा रहा है, तो ज़रा अपने छोटे छोटे बच्चों के तनाजुर में, अपने छोटे छोटे बच्चों के तनाजुर में उन यतीम बच्चों को, और उन यतीम मतलब अपनी बहनों को और मिस्किनों को भी क्या है ज़रा गौर फिक्र करो। ये एक जज्बाती अपील की जा रही है कि भाइयों को सोचना चाहिए कि जो बहनों का हक मारते हैं, अब उनके वालिद भी नहीं हैं, तो वो अपने आप को अपनी बहन के कायम मुकाम जगह पर रखकर सोचना चाहिए कि कल को उनकी हालत, वो इंतकाल करने के बाद उनकी हालत वैसी हो सकती है। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने एक जज्बाती तौर पर, एक इमोशनल तौर पर क्या है यहाँ पर यह बयान किया, जिनका हक क्या और मिस्किनों को भी देखना चाहिए। ये एक जज्बाती अपील की गई है, जो ऐसे हैं जिनका हक अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया है, उनको भी क्या है कुछ दे दिया करो माल कसीर में से। अब आइए उसके बाद क्या है एक वईद सुनाई जा रही है, एक धमकी अल्लाह तबारक तआला दे रहे हैं। जो लोग दूसरों का हक दबा कर बैठ जाते हैं, उनका अंजाम क्या होगा। इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, वारिस में से मतलब वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं। यतीम कौन है? यतीम कौन है? नौज़ बिल्लाह। आप देखिए, अब हमारे बाप हैं, बाप बाप मर गए हैं, तो बाप मरने के बाद तो बच्चे यतीम होते ही हैं। मिसाल के तौर पर भाई आकर क्या है बहन का हक उन्होंने हड़प लिया, बहन के हक को उन्होंने मार लिया, सल्ब कर लिया, तो क्या है वहां पर, यानी यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला, बेशक वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, जो उनकी जो बहन है वो यतीम हो गई है, जिनका वालिद मर चुके हैं, तो यतीमों का माल खाने के लिए यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने वईद के तौर पर कहा है, वारिस में से बेटी या बहन को क्या है हक नहीं दिया गया है। मिसाल के तौर पर विरासत में से क्या है बेटी हो या बहन हो, उनको हक नहीं दिया गया है। मतलब वो रुपया पैसा नहीं, वो इसका मतलब यह है कि वो जो बंदा जो हक जो उसने हड़प किया है, वो दरअसल वो रुपया पैसा नहीं खा रहा है, बल्कि अगर खा रहा है तो क्या है अपने पेट में आग को भर रहा है, वो जहन्नम की ईंधन, जहन्नम की आग को क्या है अपने पेट में भर रहा है। ये अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नम के आग से तशबीह दी है, और आग से आग को ही क्या है बड़ी मुनासबत है। लिहाजा पेट में आग भर रहे हो ना, तो क्या है लिहाजा दुनियावी जिंदगी में तो तुम पेट में आग भर रहे हो ना, तो अनकरीब क्या है ये भड़के हुए आग में क्या है, भड़कते हुए आग में भी क्या है दाखिल किए जाएंगे। तो इससे पहले में अब आइए, तो ये बात इस बात के बाद, इससे पहले में आयत वसीयत, अब यहाँ पर आयत वसीयत गुजरती है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़िक्र मिस्ली हज़्ज़िल उन्सयैन से शुरू होता है। अब देखें आयत नंबर 11 से। तो यहाँ पर जो इस आयत को, आयत वसीयत को जिक्र करने से पहले इसका पस मंज़र, बैकग्राउंड मैं आप हज़रत के सामने बयान करना मुनासिब समझता हूँ। वो पस मंज़र कहाँ है? हदीस में है। हदीस में इस तरह से है कि अन मोहम्मद इब्न अल-मुकंदर अन मोहम्मद इब्न अल-मुनकदिर समिअ जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूलु मरिज़्तु फ़अआदिनी, यानी इसका तर्जुमा कह देता हूँ क्योंकि चूंकि हदीस थोड़ी तवील है। बुखारी ने इसको सही बुखारी में इसको किताबुल फ़राइज़ में इसको जिक्र किया है। मोहम्मद इब्न मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह, ये अब सहाबी इकराम जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हुए सुना है कि एक मरतबा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे थे कि एक मरतबा मैं बीमार हो गया। अब जब मैं बीमार हुआ तो मेरी इयादत के लिए क्या है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए, और दोनों पैदल चलते हुए, माशिया ने कहा, दोनों पैदल चलते हुए मेरे पास आए ताकि मेरी इयादत कर सकें। और जब मेरे पास आकर पहुँचे, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आकर बैठ गए, तो मैं अचानक क्या है मैं बेहोश हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये तो बेहोश पड़े हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पानी लिया, पानी के ज़रिए से वज़ू किया, और वज़ू बनाने के बाद जो पानी जो बचा हुआ था वो बकिया पानी रखा, बकिया जो पानी था वो पानी क्या है मेरे ऊपर प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिड़क दिया, जिसके वजह से क्या है मुझे फिर एक मरतबा क्या है होश में आ गया। जब मुझे इफाका हो गया, होश में आ गया, तो मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला पूछा। मैंने प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मसला पूछा कि अय अल्लाह के रसूल, शायद क्या है इस बीमारी से क्या है मैं शिफायाब जल्दी ना हो सकूं, और यही बीमारी क्या है मेरे मौत की भी वजह बन सके, शायद, अल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ज़िंदगी मेरे साथ वफ़ा ना करे, मसला यह है कि मैं अपने माल का क्या करूँ, मैं अपने माल को कैसे तकसीम करूं, अपने माल में क्या फ़ैसला करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या है मसला चूँकि मालूम नहीं था, आयत वसीयत चूँकि नाजिल नहीं हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि क्या है आयतुल मीरास नाजिल हो गई, और उसकी रोशनी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा क्या, तो
یہ आयत जो मीरास है जो नाजिल हो गई, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो बयान की गई है वो देखिए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, सबसे पहली आयत जो बयान की गई, अल्लाह तबारक ताला वसीयत करता है तुम लोगों को, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद में, यानी वसीयत जो कि देखें जो माल वसीयत है, वसीयत में से सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी है कि जो मैयत जो यानी जो मैयत जो वसीयत करके यानी मरने से पहले जो वसीयत कर सकता है मैयत क्या है, वो 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ये कानून है, ज़ाबिता है। सुलुस से ज़्यादा अपने माल में से सुलुस से ज़्यादा वसीयत वो नहीं कर सकता। यानी अगर वसीयत करता हो तो ज़विल फुरूस के अलावा किसी के लिए क्या है, किसी के लिए तो 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। अब देखिए ज़विल फुरूस किसे कहते हैं, आपको मैंने आप हज़रात को सामने मैंने बात रख दी। ज़विल फुरूस वो लोग हैं जिनके हिस्सों को अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में मुतय्यन कर दिया है, इसको ये हिस्से में। तो वसीयत करने का कानून ज़ाबिता एक है कि इंसान इंतकाल करने से पहले वसीयत कर सकता है, लेकिन वो वसीयत भी 1/3 ही में हो, 1/3 से कम हो या 1/3 तक हो, उसके माल का 1/3 हिस्सा तक हो, और वो वसीयत भी ज़विल फुरूज में से ना हो, क्योंकि वो लोग तो वारिस बन ही रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको क्या है, वारिस बना ही रहा है। तो क्या है, उन लोगों में से नहीं देना है, जो वारिस नहीं बन रहे हैं उनमें से क्या है, उनको क्या है 1/3 देना है। तो यहाँ पर बकिया तुम्हारा माल अब देखिए ये वसीयत के सिलसिले में हो गया। अब देखिए बकिया जो तुम्हारा माल है, माल किन किन लोगों में तकसीम होगा, फहरिस्त आयतुल मीरास में अल्लाह ताला ने बयान की है, उसके अंदर पूरी तफसील आए, और इसका आगाज़ एक लफ्ज़ से हो रहा है। आयतुल मीरास की शुरुआत करता हूँ। चलिए, सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, यूसीकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है, यानी तुम्हारे औलाद के ताल्लुक से अल्लाह ताला वसीयत कर। गोया ये कानून विरासत, ये तकसीम विरासत का ज़ाबिता, ये दर हकीकत अल्लाह ताला की वसीयत है। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह की वसीयत है। अल्लाह वसीयत कर रहा है तुम्हें कि तुम इस तरह करो, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की वसीयत का पूरा करना ज़रूरी है। ये एक नुक्ता मालूम हुआ हम लोगों को, अल्लाह की वसीयत को पूरा करना ये सबसे अहम चीज़ है। और सबसे अब दूसरी बात जो इसमें मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने जिसका हिस्सा मुतय्यन कर दिया है, अब मैयत क्या है, अपनी ज़िंदगी में उनके लिए वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत किन के लिए कर सकता है, वो जैसा कि मैंने अभी कहा, ज़विल फुरूज में से न करे, जिनको अल्लाह ताला ने जिनका मुतय्यन किया हिस्सा उनको ना करे, उनके अलावा जैसा कि ला वसीयत लिवारिस, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं होगी। विरासत में अल्लाह ताला ने जिस का हिस्सा मुतय्यन कर दिया है, मरने से पहले आदमी क्या है, वारिसिन के हक में वसीयत नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर ऐसा कर दे तो गोया, अगर मिसाल के तौर पर वलो बिल फर्ज, उसने वारिसिन ही में से ये नीयत से कि क्या है, फलां शख्स को क्या है, उसने ये वसीयत कर दी कि मेरे इंतकाल के बाद क्या है, मेरे बेटे को आधी जायदाद दे दी जाएगी, तो वसीयत की। तो अगर उसने इस तरह से वसीयत की है, अगर वो ये वसीयत करता है, इसलिए अगर ऐसा कर दे तो गोया अल्लाह ताला के कानून मीरास की वो इस्लाह कर रहा है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला ने जो कानून मीरास बनाया है उसकी वो इस्लाह कर रहा है, उसकी वो करेक्शन कर रहा है। नऊज़ बिल्लाह, तरमीम और इस्लाह किया। तो अल्लाह ताला का जो कानून, इस वजह से कि कोई इंसान उसमें तसर्रुफ़ करे और उसकी नऊज़ बिल्लाह उसमें गलतियाँ निकाले, अल्लाह के कानून में गलतियाँ निकाले, तो ये ऐसा ही हुआ। जो लोग क्या है, विरासत के वारिसीन में जो लोग वसीयत करते हैं, ये दरअसल क्या है, जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, हराम है। तो क्या है, ये गोया ऐसा है कि क्या है, हम अल्लाह ताला की तस्हीह कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे। अगर आदमी वारिस के लिए वसीयत करता है तो गोया क्या है, ऐसा हुआ कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक वो अल्लाह ताला की वसीयत की इस्लाह कर रहा है, लिहाजा वारिसीन के लिए वसीयत नहीं होगी, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला वसीयत लिवारिसीन, ये कानून बना दिया गया, वारिसीन के लिए कोई वसीयत नहीं। और एक नुक्ता यहाँ पर यह है, ये भी जहन में रखना चाहिए नुक्ता, के पहले पूरे माल को सामने लाया जाएगा। मिसाल के तौर पर आदमी मर चुका है, उसके सारे माल को जमा कर दिया जाएगा, सामने लाकर रख दिया जाएगा। सबसे पहले चीज़ जो काम की जाएगी उसके माल में से है, वो है उसके तजहीज़ कफन दफन, उसके कफन और दफनाने का, कफन का और दफनाने का इंतज़ाम उसी के माल में से किया जाना चाहिए।
سب سے پہلی چیز یہ کرنی چاہیے. میت کا کیا ہے, کفن دفن کا اہتمام, کفن کا انتظام کرنا ہے, اور دفنانے کے سارے انتظامات اور جتنے بھی تجہیزات ہیں ساری چیزیں اسی کے مال سے, اسی کے طریقے سے کیا ہے کی جانی چاہیے, کیونکہ وہ اسی کا مال ہے. اور یہاں پر اکثر طور پر یہ غلط فہمیوں میں لوگ رہتے ہیں, اور یہ اس طرح ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کفن دفن میں اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہوں, ان کا کفن دفن میں اپنی طرف سے. نعوذ باللہ, ایسا ہرگز نہ کریں, کیونکہ وہ شخص ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ خوددار انسان تھا. وہ جب زندہ رہتے ہوئے آپ سے اس کی خودداری کی بنسبت وہ آپ کی کسی مال کو تسلیم نہیں کر سکتا, تو وہ کفن کو کیسا تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کی ایک پیاری سی مثال حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ. حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول جب انتقال ہو گئے تھے تو ان کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے, جب ان کے سر کو ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کیا ہے نظر آتے تھے, جب پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر نظر آتا تھا. صحابی رسول میں اس وقت اتنے بڑے بڑے مشہور صحابہ تھے, عثمان بن عفان, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, جو مالدار صحابہ بھی تھے, یعنی جن کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ کفن دفن دینے کا, یعنی کفن دینے کے طاقت رکھتے تھے صحابی کو, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. صحابہ نے ایسا کچھ نہیں کیا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مصعب بن عمیر کے سر پر کیا ہے کپڑے کو ڈھانک دو اور پیر کے جگہ پر کچھ گھاس پھوس جو ہے گھاس رکھ کر ڈال دو. اللہ اکبر. تو اسلام نہ صرف انسان کی زندگی میں اس کی خودداری کا احترام کرتا ہے, بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی خودداری کا احترام ہمیں کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے, طریقے سے اس کے کفن اور دفن کا کیا ہے سارا انتظام کیا جائے. دوسری چیز قرض. دوسری چیز کیا ہے, قرض. قرض کا اگر کہ میت نے کسی کے پاس سے ادھار لیا ہے, قرض لیا ہے, تو سب سے پہلے اس کے ترکے کے مال سے کیا ہے اس قرض کو واپس کرے. اور اسی طرح سے اگر میت نے کسی کے پاس سے قرض لیا ہے, اگر کسی نے میت کے پاس سے قرض لیا ہے, مثال کے طور پر میت ہے, اس کے پاس سے دوسروں نے قرض لیا ہے, اور دوسروں نے قرض لیا تو اس مال کو بھی کیا ہے اگر کچھ رہن کے طور پر دے کر رکھا ہے تو وہ چیزیں دے کر کیا ہے اس کے مال کو لا کر رکھ دے. یہ ضروری ہے, قرض کی ادائیگی ضروری ہے. اب ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آیت میں پہلے وصیت کا ذکر ہے. دیکھیں, من بعد وصیت یوصی بہا او دین. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں تمہیں کیا ہے, یہ تم وارث بنو گے, تمہیں اتنا ملے گا, اتنا ملے گا. کب ملے گا؟ وصیت کے بعد اور قرض ادائیگی کے بعد. آیت میں کیا ہے سب سے پہلے وصیت کو ذکر کیا گیا ہے اور قرض کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے. لیکن ترتیب میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے, ترتیب میں قرآن کی ترتیب میں تو پہلے وصیت ہے اور بعد میں قرض ہے. لیکن حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, پہلے قرض ہونا چاہیے تھا, بعد میں وصیت, کیونکہ تیسرا سٹیج آتا ہے وصیت کا. قرض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی مال بچتا ہے تو میت کے کیا ہے وصیت کر سکتے ہیں. میت کی جو وصیت ہے اگر وہ جائز وصیت ہے, وارثین میں نہیں ہے, غیر وارثین میں, تو اس مال وصیت کو کیا ہے دیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر عام طور پر کیا ہے قرض, عام طور پر قرض دینے والا, یہاں پر ایسا کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, پہلے وصیت کو کیوں بیان کیا اور بعد میں قرض کو کیوں رکھا؟ عام طور پر قرض دینے والا کیا ہوتا ہے, دیکھیے غور کیجیے, قرض دینے والا جس کو اس نے قرض دیا ہے نہ دے, اگر نہیں دے گا تو کیا ہے آستین چڑھا کر کیا ہے قرض وصول کر سکتا ہے. آستین چڑھا کر بھی قرض وصول کر لیتا ہے, دینا ہی ہے. یعنی عام طور پر قرض دینے والا اپنا قرض وصول لیتا ہی ہے, دینے والا کیا ہے پسو پیش کرتا بھی ہے, تو کیا ہے کرتا بھی ہے. لیکن یہ آستین چڑھا کر قرض دینے والا آستین چڑھا کر کیا ہے ڈرا دھمکا کر اپنا قرض وصول کر لیتا ہے. لیکن وصیت کے معاملے میں اکثر لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں. وصیتوں کی تکمیل نہیں ہوتی اور وصیتیں پوری نہیں کی جاتی ہیں. لہٰذا اس کی اہمیت کے پیش نظر دین سے کیا ہے وصیت کو مقدم رکھا گیا ہے. لہٰذا دین کا ذکر بعد میں آیا ہے اور وصیت کا ذکر پہلے آیا ہے. لیکن ترتیب میں کیا ہونا چاہیے, ترتیب میں سب سے پہلے قرض ادا کر دینی چاہیے, اس کے بعد میں وصیت ہوگی. اب آئیے اگلا ٹکڑا دیکھتے ہیں. اس آیت کا اگلا ٹکڑا تو انتہائی قابل غور ہے. سبحان اللہ. اگر جو آیت جو بیان کرتا ہے اللہ پردہ انتہائی قابل غور ہے. اس میں عورتوں کا مقام بتایا گیا ہے. سبحان اللہ. عورتوں کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر, ذرا دیکھیے. تو بتایا گیا ہے. میں تو اگر غور کریں اس آیت پر, میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ ایک ٹکڑا ہی کیا ہے کافی ہے عورتوں کے مقام کو واضح کرنے کے لیے. سبحان اللہ. عورتوں کے مقام کو واضح اجاگر کرنے کے لیے یہ صرف یہ آیت کا ٹکڑا کافی ہے, اور کچھ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. سبحان اللہ. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے کا ڈبل ہے. ذرا غور سے سنیے, لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے سے ڈبل ہے.
हालांकि जबकि कहना ये चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, कहना ये चाहिए था कि लड़की का हिस्सा लड़के के हिस्से का आधा है। समझ में आ रही ना बात? लड़की का जो हिस्सा है वो लड़के के हिस्से के आधा है, लेकिन ऐसा कहना तो ऐसा चाहिए था। यहां पर लड़की को हाईलाइट किया गया, लड़की को यहां पर मेयार बनाया गया, लड़की के हिस्से को यहां पर कसौटी बनाया गया है। तो हाईलाइट करके बता रहा है अल्लाह ताला, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का हिस्सा लड़की के 2 हिस्सों के बराबर है। यानी लड़की को तो देना ही देना है, लड़के को यहां पर तय करना है कि लड़के को कितना मिलेगा। पहले अल्लाह ताला ने लड़की का तो फिक्स कर दिया यहां पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक ताला की कुरान मजीद देखिए कितनी प्यारा कलाम, कितना प्यारा कलाम है, और इसने औरतों को क्या मुकाम अता किया। 2 हिस्से, यानी लड़के का हिस्सा लड़की के 2 हिस्सों के बराबर है। यहाँ हाईलाइट लड़की के हिस्से को किया गया, अल्लाह अकबर। और दूसरा जो टुकड़ा वो भी क्या है, काबिल गौर है, वो है कि उसके अंदर भी क्या है, औरत ही को हाईलाइट करके बयान किया गया है। फ़इन कानत वाहिदतन, अगर एक लड़की हो, फ़इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ़, तो उस लड़की को एक आधा मिलेगा। एक औरत हो, फ़इन कानत वाहिदतन, अगर एक लड़की हो तो उसको आधा मिलेगा, फलहन निस्फ़। देखिए, और अगर लड़की एक है तो विरासत में उसे आधा माल मिल जाएगा। और अगर हम गौर करेंगे मेरे अजीज भाइयों, अगर हम गौर करेंगे तो आयत विरासत ही के अंदर क्या है, औरत के मुकाम, इस एक आयत काफ़ी है सारे कुरान में औरत के मुकाम को और मर्तबे को उजागर करके बयान करने के लिए, काफ़ी है चीज़, क्योंकि इस मुकाम को इतना वाज़े करके बयान किया। देखिए, सबसे पहले लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का हिस्सा लड़की के 2 हिस्सों के बराबर है, ये इसमें भी लड़की को हाईलाइट किया गया। और दूसरा, व इन कानत वाहिदतन, अगर लड़की एक हो तो उसे निस्फ़ दिया जाएगा, इसमें भी लड़की को बयान किया गया। उसके बाद सुभान अल्लाह, उसके बाद भी देखिए उसी आयत में, फ़इन कुन्ना निसाअन, अगर औरतें फ़ौक़स्नतैनी, 2 से ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों औरतें, इसमें भी क्या है, औरत को जिक्र किया गया है। अगर लड़कियां 2 या 2 से ज़्यादा हों, फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, तो उन्हें क्या है, 2/3 मिलेगा, यानी 2/3, 2/3 मिलेगा। 2/3 में क्या है, लड़कियां मिसाल के तौर पर 3 या 4 हैं, लड़कियां बेटियां 3 या 4 हैं, तो 2/3 क्या है, उसे क्या है, 2/3 हिस्सा मिलेगा। उस 2/3 में तमाम लड़कियों को तकसीम कर दिया जाएगा। तो यहां भी क्या है, लड़की के हिस्से को हाईलाइट करके बयान किया गया है आखिर तक। इसी तरह आयत मीरास के आखिर तक चले जाइए, इस आयत के आखिर तक आप देखेंगे कि माँ का तज़किरा भी जो बयान किया अल्लाह ताला ने, माँ का तज़किरा बाप के तज़किरे से बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। और इसका मतलब ये हुआ कि आयत मवारिस के ऊपर गौर कर लिया जाए तो औरत का मुकाम और मर्तबा आसानी से मुतय्यन किया जा सकता है इस्लाम के अंदर, कि इस्लाम ने औरत को क्या मुकाम अता किया। सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक कुल्लिया, एक फार्मूला मैं आप हजरात के सामने बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। एक फार्मूला, इसको अच्छी तरह से हम जहन नशीन कर लें, अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। एक ज़ाबिता है, एक कुल्लिया है, और आप हजरात के सामने मैं इस बात को रखूँगा हदीस की रोशनी में, इंशाल्लाह हदीस पाक की रोशनी में, ताकि आप इस कुल्लिये से, क्योंकि यही बेस बनने वाला है कि आगे तमाम जो भी मसले मसाइल विरासत के आएंगे, इसी हदीस को क्या है, अक्सर तौर पर बेस बनाकर, इस हदीस को दलील के तौर पर बनाकर, जुज़इयात यानी इस कुल्लिये को सामने रखकर क्या है, जो भी सब प्रॉब्लम्स, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे, जो छोटे छोटे मसले मसाइल होंगे, इसी से क्या है इस्तिखराज और इस्तेंबात के माने मुस्तंबत होती हैं, तो आसानी से क्या है हम तय कर ले सकते हैं। अब आइए हदीस की तरफ चलते हैं। क्या है वो ज़ाबिता, क्या है कुल्लिया, क्या है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलहिक़ुल फ़राइज़ बिअहलिहा फ़मा बक़िया फ़हुवा लिऔला रजुलिन ज़कर। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताबुल फ़राइज़ में इस हदीस को बयान किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़विल फ़ुरूज़ जैसा कि मैंने आप हज़रत से कहा, यानी जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिए हैं, वो ज़विल फ़ुरूज़ हैं। उन तमाम हिस्सेदारों को, ज़विल फ़ुरूज़ को उनका हक़ दे दो। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहिक़ुल फ़राइज़ बिअहलिहा, तमाम अहल ज़विल फ़ुरूज़ को क्या है, उनका हक़ दे दो। यानी ज़विल फ़ुरूज़ को जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिए हैं, उनको उनका हिस्सा दे दो। और हिस्सा सबको देने के बाद जो बाकी बचे, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या किया जाए, मैयत का जो सबसे करीबी मुज़क्कर रिश्तेदार है, मैयत का जो सबसे करीबी मुज़क्कर रिश्तेदार है, मुअन्नस नहीं है, औरत नहीं है, लड़की नहीं है, बल्कि मुज़क्कर है,
मेल है, मेल रिश्तेदार है, मैयत के जो सबसे करीब का जो मेल का रिश्तेदार है उसको दे दिया जाएगा। ये एक कुल्लिया है, ये एक जाबिता है। मतलब इसका ये है, इस हदीस को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है, क्योंकि जाबिता है, ये कुल्लिया है। ज़वील फुरूज को देखिए, ज़वील फुरूज एक और मरतबा समझ लीजिए, ज़वील फुरूज जिनके हुकूक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतय्यन कर दिए हैं, जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिए हैं। बेटी को इतना मिलना चाहिए, बहन को इतना मिलना चाहिए, माँ को इतना मिलना चाहिए, और इसी तरह से क्या है, बीवी को इतना मिलना चाहिए, शोहर को इतना मिलना चाहिए, 2 से ज़ायद बेटियां और लड़कियां हों तो क्या है, इतना मिलना चाहिए। ये सब ज़वील फुरूज है, ये सब क्या है, ज़वील फुरूज है, ये सब ज़वील फुरूज हैं। और इनको इनके हिस्से दे दो, अल्लाह ताला ने कहा इनको इनके हिस्से दे दो। एक जुमला एक तो हो गया, इनको इनके हिस्से दे देना, एक कानून हो गया, जाबिता हो गया। और फिर क्या है, दूसरा जो जाबिता है, फिर उसके बाद जो बाकी हिस्सा हो मैयत का, जो मैयत का सबसे करीबी मुज़क्कर रिश्तेदार है उसको दे दिया जाना चाहिए। ये क़ायदा कुल्लिया तरतीब में मुज़क्कर रिश्तेदारों की तरतीब में पहले क्या है, बेटा आता है, तरह फिर बाप, फिर चचा वगैरह, ये सब तरतीब है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल के तौर पर मैं क्या है अब आपके हजरत के सामने बात करूँगा कि मिसाल के तौर पर मैयत है, एक शख्स मर गया है, उसकी क्या है, एक बीवी है, माँ है, और क्या है, 2 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं। कौन कौन है, मैयत है, मैयत की बीवी है, और माँ है, और 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं। तो यहाँ पर अब आदमी मरा, माँ मौजूद है, बीवी मौजूद है, और बेटियाँ भी हैं, और बेटियाँ अगर हैं, औलाद अगर मौजूद हों, तो औलाद की मौजूदगी में मैयत के ज़ाबिता यह है कि अगर औलाद मौजूद है तो माँ को क्या है, 1/6 मिलता है। तो यहाँ पर औरत को, यहाँ पर माँ को 1/6 मिलेगा, यहाँ पर 1/6 मिलेगा, क्योंकि बेटियां हैं, मैयत की बेटियां यहाँ पर हैं मौजूद, तो माँ को 1/6 मिलेगा। और बीवी को जो मिलेगा, बीवी के इसी तरह से बीवी उसके साथ उसकी बेटियां हो, उसकी बच्चियां हो, तो बीवी को क्या है, 1/8 मिलेगा। अगर बच्चियां ना हो तो 1/4 मिलेगा। इंशाल्लाह ये जो तफासिल हैं, मैं इंशाल्लाह कल के दर्स में इंशाल्लाह इसको आप हजरात के सामने ज़वील फुरूज के सिलसिले में, और उसके बाद असबा, और उसके बाद तमाम चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ से कल के क्लास में इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर साहब। जज़ाकल्लाह खैर साहब। जी समझ में कुछ आई साहब, बातें समझ में आई क्या? मैं अहबाब से पूछना चाहता हूँ।